خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں مہنگی بجلی بھاری ٹیکسز کے خلاف ملک گیر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی۔ انارکلی مارکیٹ کی دکانیں بند ہیں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ حکمرانوں کی غلط پالیسی کے خلاف ہڑتال کی گئی۔ مہنگائی کے باعث پہلے ہی کاروبار متاثر ہیں۔ اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اسامہ سے۔ جی محمد اسامہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، ملک کی مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے ملک بھر میں بجلی کے بھاری بلوں، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ظالمانہ ٹیکسز کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت میں لاہور کی مشہور ترین مارکیٹ انارکلی میں موجود ہوں۔ یہاں پر اس وقت اتنا رش ہوتا ہے، لیکن آج چونکہ مکمل طور پر ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، تو پوری مارکیٹ بند نظر آ رہی ہے۔ مارکیٹ کی 90% سے زائد دکانیں بند نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر بالکل بھی رش نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہیں، کیونکہ تاجر تنظیموں کی جانب سے بجلی کے بڑھتے ہوئے بھاری بل، ظالمانہ ٹیکسز اور دیگر مہنگائی کے خلاف بھی یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے اور ملک کی مختلف تاجر تنظیموں کی جانب سے اس ہڑتال کی مکمل طور پر حمایت کی گئی ہے اور اسی لیے ابتدائی طور پر 2 دن کی یہ ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ آج اس ہڑتال کا پہلا دن ہے۔ لاہور کی بیشتر مارکیٹوں کی طرح جو انارکلی مارکیٹ ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہے۔ 90% سے زائد دکانیں ان کو تالے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 90% سے زائد دکانیں بند نظر آ رہی ہیں اور تاجر تنظیموں کی جانب سے بجلی کے بھاری بلوں، ٹیکسز اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف یہ ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ ابتدائی طور پر 2 دن یہ ہڑتال کی کال ہے۔ اگر مطالبات نہیں مانے گئے تو تاجر تنظیموں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ہڑتال کی یہ جو کال ہے یہ آگے بڑھتی جائے گی اور اس کے علاوہ دیگر احتجاج کے آپشن بھی کھلے رہیں گے۔ جی آپ کا شکریہ اسامہ۔ اب آپ کو بتائیں، عوام کے لیے کوئی بات نہیں کرتا۔ جماعت اسلامی پورے ملک کی آواز بن کر چل رہی ہے۔ ہمارے پاس ہڑتال کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی منصورہ میں پریس کانفرنس، بولے تاجر برادری 1 ہفتے کی ہڑتال کے لیے بھی تیار ہے۔ جماعت اسلامی عوام کو ریلیف دلوائے گی۔ جماعت اسلامی مسلسل جدوجہد کر رہی ہے۔ ہم نے تاریخی دھرنا دیا، آپ نے دیکھا مری روڈ راولپنڈی میں، اور اس کے بعد حکومت نے ہم سے باقاعدہ معاہدہ کیا ہے۔ اس معاہدے کو آج جو ہے 20 دن گزر گئے ہیں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ 14 روپے کا جو 2 مہینے کا ریلیف ہے، اس کے علاوہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ پورا پنجاب بھی اٹھ کر کھڑا ہوا ہے اور پورا پاکستان اٹھ کر کھڑا ہوا ہے کہ پورے پاکستان کے لیے بجلی کی لاگت کے مطابق ٹیرف بنانا پڑے گا۔ اس سے کم تر پر ہم قبول نہیں کریں گے۔ لہذا اپنے معاہدے کی پاسداری کرنا حکومت کا کام ہے اور ہم اس کا تعاقب کر رہے ہیں، اور ہم نے اس وقت بھی بہت واضح طور پر یہ بات کہی تھی کہ ہم ہڑتال بھی کریں گے، احتجاج بھی کریں گے، ہم دھرنے بھی دیں گے۔ عوام کی ترجمانی کا فریضہ الحمدللہ جماعت اسلامی ادا کر رہی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہڑتال جماعت اسلامی کی ہڑتال نہیں، یہ پورے پاکستان کی ہڑتال ہے۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس پریشر کو انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے، اگلی کال کے لیے وسیع تر مشاورت کریں گے اور ہر صورت میں بجلی کی قیمت کو کم کرنا ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کا مختلف علاقوں کا دورہ، شٹر ڈاؤن ہڑتال کرنے پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا۔ نائب امیر جنوبی لاہور جبران بٹ سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ آپ کو بتائیں کہ جماعت اسلامی کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد یہ مختلف علاقوں کے دورے کیے گئے ہیں اور امیر جماعت اسلامی کی لاہور کی جانب سے جہاں انہوں نے دیکھا کہ تاجروں کی جانب سے ہڑتال کی گئی ہے اور اس پر ان کی جانب سے تاجروں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا جماعت اسلامی کی جانب سے اور جماعت اسلامی نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا تھا، جس پر تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور اس کے بعد امیر جماعت اسلامی لاہور کی جانب سے تاجروں کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی مختلف علاقوں میں گئے اور صورتحال کا جائزہ لیا اور ان کی جانب سے تاجروں کا شکریہ بھی ادا کیا گیا ہے۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال پر تاجروں کا شکریہ ادا کیا ہے امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری نے۔ ضیاء الدین انصاری کی جانب سے مختلف علاقوں کا دورہ کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے مہنگائی کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عوامی مسائل کے لیے ہم باہر نکلتے رہیں گے اور حکومت کو بتاتے رہیں گے کہ ہم فیلڈ میں موجود ہیں۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں اور آئی پی پیز معاہدے کے خلاف وابڈہ پیغام یونین سراپا احتجاج ہے۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے حکومت اور لیسکو کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔
महंगी बिजली, तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का फैसला और IPPs मुआहदे नामंजूर। वापडा पैगाम यूनियन ने लेस्को हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाजी मैदान लगाया। मुजाहिरीन ने हुकूमत और लेस्को इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मरकजी सदर वापडा पैगाम यूनियन सराजुद्दीन साकिब और सेक्रेटरी तौकीर इस्लाम ने कहा कि हुकूमत IPPs मुआहदों से तवज्जो हटाने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी की तरफ जा रही है। IPPs से किए गए मुआहदे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। हमारे हुक्मरान चूँकि खुद IPPs के बहुत से पावर हाउसेस के मालिक हैं, उन्होंने उससे तवज्जो हटाने के लिए अवाम की भी और मजदूरों की भी और मुल्क की भी सबकी तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि हम बिजली कंपनियों की निजकारी करेंगे। मैं कहता हूँ कि निजकारी बिजली कंपनियों की करना ये मुल्क और कौम से दुश्मनी है। जो लाइन मैन हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं, फेडरल हादसों का शिकार हैं। हम ये कहते हैं कि नई भर्तियाँ की जाएँ, इसके बाद IPP मुआहदे जो है मुल्क दुश्मन को ख़त्म किए जाएँ। वापडा पैगाम यूनियन के अहदेदारों ने मजीद कहा कि निजकारी के बाद के इलेक्ट्रिक की मिसाल सबके सामने है। हुकूमत इसे 169 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। मुनाफा बख्श कंपनियों की निजकारी नहीं होने देंगे। अब आपको बताएं, स्टील मिलों को बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों पर फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों की हद तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। स्टील मिल्स पर बिजली के बिल्स में फिक्स चार्जेस आयद करने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने 9 कंपनीज की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ख्वाजा वसीम अब्बास एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लेस्को ने बिल्स पर फिक्स चार्जेस का नफाज कर दिया है। लेस्को की जानिब से आयद फिक्स चार्जेस की कोई मंजूरी नहीं ली गई। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक फिक्स चार्जेस आयद करने के लिए काबीना और नेपरा से मंजूरी हासिल करना जरूरी है, जबकि लेस्को ने बगैर बिजली इस्तेमाल हुए 32 लाख रुपए का बिल भेज दिया है। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक गुज़श्ता माह 57 लाख रुपए जबकि इस महीने 1,56 लाख रुपए का बिल भिजवा दिया गया है। लिहाजा अदालत लेस्को की जानिब से फिक्स चार्जेस को खत्म करने का हुक्म दे। अदालत ने बिजली के बिल्स में फिक्स चार्जेस वसूली के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों की हद तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। गिराम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन ताहाल बड़ा चैलेंज है। 70 मजिस्ट्रेट्स की फ़ौज ज़फ़र मौज भी कम नापतोल करने वालों पर भारी ना पड़ सकी। गिराम फरोशी कम तो ना हुई, अलबत्ता महंगाई का तनासुब 100% ऊपर चला गया। इंतज़ामी रिपोर्ट के मजिस्ट्रेट्स की तादाद नाकाफ़ी करार दे दी गई है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ज़िली इंतज़ामिया इस हवाले से हमें एक्टिव नज़र आती है, लेकिन इक़दामात इतने कम हैं कि आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तफसीलात के लिए बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, बताइए इस बारे। देखिए, शहर में ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन ताहाल चैलेंज करार है और इस वाले से 70 मजिस्ट्रेट की फौज दर ज़फ़र मौज भी ग्राम फरोशी और कम नाप तोल करने में वालों में भारी नहीं पड़ सकी। इस वक्त शहर में ग्राम फरोशी भी जारी है और ग्राम फरोशी कम तो ना हुई है, अलबत्ता महंगाई का तनासुब 100% ऊपर नजर आ रहा है जाते हुए। 70 मजिस्ट्रेट्स हैं जो 1,48,000 अशिया ज़रूरिया की दुकानों की चेकिंग करते हैं, मगर ये नामुमकिन टास्क जो है वो नजर आ रहा है। इंतजामी रिपोर्ट के मजिस्ट्रेट की तादाद को नाकाफी करार दे दिया गया है, जिसमें शहर में 10,000 तंदूर हैं, 400 मेगा स्टोर्स हैं। इसकी निगरानी के लिए मॉनिटरिंग नहीं हो रही, जबकि ज़राए बता रहे हैं कि महंगाई में होशरुबा इजाफा शहरियों के लिए एक दर्द सर बन गया है। बीफ और मटन की अगर कीमतों को देखा जाए तो सरकारी नरक से 2 गुना ज्यादा फरोख्त हो रहे हैं। दालें, सब्जियां, सुर्ख व सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा जो है नहीं रुक सक रहा, जबकि दही और दूध महंगे दामों की खुलेआम फरोख्त की जा रही है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी पैमाना कामयाब नहीं हो सक रहा। इंतजामिया की तरफ से छापों FIR का अंदराज करवाया जा रहा है। दुकानदार अशिया ज़रूरिया हर एक से 5 रुपए जो है मुनाफा कमा रहे हैं। इस वजह से देखा गया है कि मजिस्ट्रेट की मॉनिटरिंग का मौसम निज़ाम ठीक नहीं है। ज़िला इंतजामिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम फरोशी पर काबू पाने के लिए 2 गिरफ्तारियां हुई हैं आज के दिन में और 2 दुकानें सील हुई हैं, जबकि 24 घंटों में 1,568 मकामात की चेकिंग की गई है। 6 मुकदमात का अंदराज करवाया गया है। 138 खिलाफ वर्जियों पर 8 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। इंतजामी अफसरान प्राइस कंट्रोल पर सख्त कार्रवाइयां तो जारी की हुई हैं। रोटी की कीमत को भी कम कर जो है हर सूरत अमल दरामद यकीनी बनाना है, जो कि 14 रुपए रोटी की कीमत है। इस वजह से DC लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि फल व सब्जी फरोशों को वार्निंग दी जा रही है। वज़ीर पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों की अशिया खुरनोश में रिलीफ फराहम करने की काविशें जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान अकबर।
चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। रूल बनाने वाली कमेटी की सिफारिशात और मुमकिन तब्दीलियाँ ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शामिल होंगे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन की कॉपी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायजिसा ने 13 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। रूल बनाने वाली कमेटी की सिफारिशात और मुमकिन तब्दीलियाँ ज़ेर बहस आएंगी। इजलास में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर जजेस शामिल होंगे। अब आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे। नवाज शरीफ का लंदन में अहम सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। अहम खबर बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस बारे। बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सितंबर के दूसरे हफ्ते लंदन जाने का इम्कान है और मुस्लिम लीग नून ज़राए का ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब का जो है लंदन में तिब्बी मुआयना होना है और जिसके लिए पहले जो डॉक्टर्स ने वक्त मुकर्रर किया था चेकअप के लिए, वो उन्होंने मुलतवी किया और नवाज शरीफ पाकिस्तान में मौजूदा कुछ सियासी सूरत-ए-हाल और तंजीमी मामलात को देखते हुए उन्होंने जो है वो सितंबर में जाने का फैसला किया था। मुस्लिम लीग नून ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से नवाज शरीफ साहब को मुकम्मल प्लान मुरतब करके उनको पेश कर दिया है और वो उन्होंने उसकी इब्तिदाई मंजूरी दे दी है और सितंबर के दूसरे हफ्ते में वो लंदन जाने का इम्कान है, जहाँ पर वो चेकअप के बाद कुछ 1.5 महीने के करीब वहाँ पर जो है वो क़याम करेंगे और उनके साहबजादे उनके साथ होंगे और मुलाकात वहाँ पर सियासी मुलाकातों का भी इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया हसन रजा।